الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورۃ الحج کی ابتدائی دو آیتیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہلکی سی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہیبت ناک دن ہوگا اور کس قدر المناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا اور سارے عالم انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو زلزلے سے تعبیر کیا کہ قیامت زلزلہ ہے، اور واقعتاً وہ زلزلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین نہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان آسمان رہے گا، وہ زلزلہ ہے اور بڑا بھیانک زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ جو دنیا کے کسی مخصوص خطے میں آتا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے، کیسی تباہی مچاتا ہے۔ انسانی آبادیاں مٹ جاتی ہیں، بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایسی عالمی تباہی مچتی ہے کہ انسانوں کو سدھرتے اور سنبھلتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ زمین کے ایک مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ اس قدر تباہی جب مچاتا ہے تو تصور کرو کہ قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ زلزلہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، قیامت کے زلزلے کے دن اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جو زلزلہ ساری زمین پہ محیط ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کیجئے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، جس دن تم دیکھو گے اسے کہ جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہیبت ناکی اور المناکی کو سمجھانے کے لیے یہاں ماں کی ممتا کی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی اور محبت کا درجہ نہیں جانا ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ ایک ماں خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے، خود جاگی رہتی ہے، اپنے بچوں کو سلاتی ہے، خود خطرات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے حق میں جس قدر حساس واقع ہوئی ہے،
दुनिया में कोई और रिश्तेदारी इस कदर हसास नहीं। मुमकिन है कि एक भाई अपने भाई को धोखा दे दे, मुमकिन है एक बहन अपनी बहन को धोखा दे दे, मुमकिन है कि एक जिगरी दोस्त को धोखा दे दे, मगर ये नामुमकिन है कि एक माँ अपने बच्चों को धोखा दे, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करे। नामुमकिन है। ममता वो चीज है कि फर्ज करो एक माँ सोई हुई है, उसके घर के बाजू रेल की पटरी है, एक ट्रेन पूरी आवाज के साथ गुजरती है, आवाज करते हुए गुजरती है, लेकिन ये जो माँ सोई हुई है उसकी नींद वो जागती नहीं है। ट्रेन की आवाज भी उसकी नींद में खलल नहीं डालती है, ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन इस हालत में अगर उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा अगर वो रोने लगे तो जिस माँ को ट्रेन की आवाज ने बेदार नहीं किया, ये माँ अपने नन्हे से मासूम की मासूम सी आवाज पे जाग जाती है, उसकी छठी हिस्स काम करती है। भाइयों, ममता वो चीज है कि दुनिया ने माँ की ममता से बढ़कर मोहब्बत का कोई और दर्जा और मोहब्बत का कोई और रुतबा नहीं जाना है। क़ियामत की अलमनाकी और हौलनाकी को समझाने के लिए कुरान ने ममता की मिसाल देते हुए कहा, क़ियामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन ये माँ की ममता भी जवाब दे जाएगी और ममता भी जवाब दे जाएगी, माएँ भी अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। फरमाया माँ भी कैसी माँ? कहा यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाती माएं अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी। एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबान उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा हमदर्द उस वक्त होती है, एक माँ अपने बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा शफीक उस वक्त होती है जब उसका नन्हा सा मासूम सा बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ हो। लेकिन क़ियामत का दिन ऐसा अलमनाक दिन है और उस दिन की हौलनाकी का यह आलम होगा कि ऐसी दूध पिलाती माएँ भी अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़ियामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से खिताब करके कहेंगे, ऐ आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। यानी कल हश्र के मैदान में इंसानियत का अंजाम ऐसा होगा, हर 1000 में 999 इंसान जहन्नम में जाने वाले और सिर्फ एक इंसान जन्नती, हर 1000 में एक जन्नती, 999 जहन्नमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये ऐलान होगा तो उस वक्त ये घड़ी पे ये घड़ी होगी कि जिस वक्त दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल साकित हो जाएंगे। जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कांप उठे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन लरज़ गए। वो यकीन के कानों से सुना करते थे। जब उन्होंने ये सुना कि इंसानों में हर 1000 में 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती, सहाबा डर गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ के ये आसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के चेहरों पे पढ़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मेरी उम्मत की मिसाल और उम्मतों के मुकाबले में कल क़ियामत के रोज ऐसी होगी कि जैसे कोई सफेद बैल हो, सफेद बैल में कुछ काले बाल हो, या कोई काला बैल हो उसमें चंद सफेद बाल हो, और उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की वही हैसियत होगी। यहां मैं एक सवाल जो पैदा हो सकता है, गलतफहमी जो पैदा हो सकती है, उसका इजाला कर देना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया है कि यह उम्मत
कल और क़यामत के रोज़ और उम्मतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी, कसीर तादाद वाली होगी। इसलिए आपने फरमाया था तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। ऐसी औरतों से निकाह करो जो बहुत ज़्यादा चाहने वाली और बहुत ज़्यादा तवालुद और तनासुल की सलाहियत रखने वाली हो, इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत तादाद पर और उम्मतों पर फ़ख्र करने वाला हूँ। यहाँ बज़ाहिर इस हदीस से ये मालूम होता है कि ये उम्मत और उम्मतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि काले बैल में चंद सफेद बाल हों या एक सफेद बैल में चंद काले बाल हो, इस उम्मत की हैसियत दूसरी उम्मतों के मुकाबले में वही होगी। बज़ाहिर टकराव है, टकराव नहीं। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत की बात की है और इस उम्मत की कसरत बताई है, वहां इस उम्मत का मुकाबला दूसरी उम्मतों से फर्दन फर्दन करना मकसूद है। अगर इस उम्मत की तादाद को लेकर दूसरी उम्मत की तादाद से फर्दन फर्दन मुकारना किया जाए, यह उम्मत कसीर तादाद होगी। और यहाँ इस हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, वो एक तरफ ये उम्मत हो और दूसरी तरफ सारी उम्मतें हो, तो वहां ये कैफियत होगी कि चंद सफेद, एक सफेद बैल में चंद सफेद बाल हो या एक काले बैल में चंद सफेद बाल हो। जो हैसियत सफेद बैल में काले बालों की होगी या काले बैल में सफेद बालों की होगी, वही हैसियत इस उम्मत की आम उम्मतों के मुकाबले में होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को इत्मीनान दिलाने के लिए आपने फरमाया कि तुम मत डरो। फिर आपने मजीद अपने उम्मत के हुस्न अंजाम की बशारत देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत जन्नत का 1/4 हिस्सा होगी। यानी जन्नत को अगर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1 हिस्सा इस उम्मत का होगा, बाकी 3 हिस्से और उम्मतों के होंगे। सहाबा को इस पर जरा इत्मीनान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजीद इत्मीनान दिलाते हुए कहा, नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि आधी जन्नत, आपने फरमाया बल्कि मुझे उम्मीद है कि 1/3 जन्नत तुमसे मामूर होगी। मेरी उम्मत से 1/3 जन्नत, यानी अगर जन्नत को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 1 हिस्सा इस उम्मत के लिए, बाकी 2 हिस्से और उम्मतों के लिए। सहाबा को और खुशी हुई, सहाबा और खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, नहीं मुझे उम्मीद है कि आधी जन्नत मेरी उम्मत से मामूर होगी। यहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की खुशी की इंतहा न रही और उनकी जबानों से नारे तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर कहा तमाम सहाबा ने। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हदीस में कि ये मंजर के दूध पिलाती माएँ अपने दूध पीते बच्चों से गाफिल होंगी, हमल वालियों के हमल साकित होंगे। ये उस वक्त पेश होगा, ये वाक़या उस वक्त पेश आएगा जब हश्र के मैदान में ऐलान होगा कि ए आदम, तुम अपनी ज़ुर्रियत में हर 1000 में 999 जहन्नम के लिए अलग कर लो। और इसी हदीस में आपने ये भी फरमाया है कि 999 जो जहन्नम के लिए अलग किए जाएंगे, इनमें से अक्सरियत याजूज और माजूज की होगी। फिर अल्लाह ताला ने इन आयतों में आगे फरमाया, वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, क्या आप लोगों को देखोगे कि लोग मदहोश हैं। कल क़यामत के दिन आप लोगों को देखोगे कि लोग मदहोश हैं। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि बात ऐसी ना होगी कि वो नशे में होंगे, नहीं, लोग मदहोश होंगे, खबर ना होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। बीवी का गुजर शोहर के करीब से हो रहा होगा, शोहर बीवी के करीब गुजरेगा मगर कोई किसी दूसरे को पूछेगा नहीं। औलाद वालिदैन की नजरों से गुजरेगी और वालिदैन औलाद की नजरों के सामने से गुजरेंगे, कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व अख़ीही और व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह, और हर दिन हर शख्स नफ्स
नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? खुद अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आगे एक मरतबे फरमाया था कि युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला, युहशरुन्नासु हुफातन उरातन गुरला। क्या आयशा कल क़यामत के रोज हश्र के मैदान में लोग इकट्ठा किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, कैसे होंगे? कहा नंगे पैर, नंगे बदन, गैर मख्तून, जिस तरह माँ के पेट से पैदा होते हैं उसी शक्ल में कल कब्र के पेट से लोग निकलेंगे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, हैरत से पूछा, अल्लाह के नबी सब बरहना होंगे, सब नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़े ना होंगे और हर एक दूसरे की जानिब देख रहा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, आयशा मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होता है, मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। किसी को फिक्र ना होगी, कोई किसी की जानिब देख नहीं रहा होगा कि कौन किस शक्ल में है, कौन किस सूरत में है, कौन नंगा है, कौन कपड़े पहने हुए है। भाइयों हम देखते हैं दुनिया में कोई हादिसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन से टकरा जाए, बस से टकरा जाए, लोग किस कदर दीवाना वार जो है चले जाते हैं मदहोश होकर, कोई किसी को देखता नहीं कौन किस शक्ल में है, नंगा है, बरहना है, लिबास पहने हुए है। दुनिया का मामूली सा हादिसा इंसान को इस कदर मदहोश करता है कि किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं जाती कि कौन किस हालत में है, कौन क्या पहने हुए है। क़यामत का वो ज़लज़ला, क़यामत का वो ज़लज़ला जो कि तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम ज़लज़ला होगा। बताओ उस वक्त क्या कैफियत होगी? वतरन्नास सुकारा, तुम देखोगे कि लोग मदहोश हैं, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि ये मदहोशी नशे की वजह से ना होगी, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अज़ाब इलाही की सख्ती होगी, अज़ाब इलाही की शिद्दत होगी कि जिससे लोग इस कदर मदहोश हो चुके होंगे। भाइयों, अल्लाह ताला सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतों की रोशनी में हमें पैगाम देना चाहते हैं, फिक्र आखिरत का पैगाम देना चाहते हैं कि हम आने वाले उस आखिरत के लिए तैयारी कर लें, क़यामत के आने वाले उस ज़लज़ले के लिए अभी से हम तैयारी कर लें। और ये न समझे कि क़यामत बहुत दूर है, ये न समझो कि क़यामत बहुत दूर है। कुरान मजीद ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुम में से हर शख्स जायजा ले, तुम में से हर शख्स अपना मुहासबा करे और देखे कि आने वाले कल के लिए उसने क्या किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन को कल का दिन करार दिया है। दुनिया आज है और क़यामत कल है। क़यामत को जो गद कहा गया, कल का दिन जो कहा गया है, उससे कई माने पैदा होते हैं। एक तो कुर्बत बताना मकसद है, कुर्बत बताना मकसद है कि आज के बाद कल का दिन जिस कदर करीब है, क़यामत भी उसी कदर करीब है। और दूसरा, क़यामत का आना किस कदर यकीनी है वो बताना मकसूद है कि जिस तरह आज के बाद कल का आना यकीनी है, उसी तरह इस दुनिया के बाद क़यामत की सुबह का आना भी यकीनी है। कुरान मजीद ने कहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून, लोगों से उनके हिसाब की घड़ी करीब आ गई, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून, हालांकि वो गफलत में मुंह मोड़े जा रहे हैं, रास किए जा रहे हैं। शरीयत हमें सोचने का यह अंदाज देती है क़यामत वो कितनी दूर क्यों ना हो, वो सैकड़ों साल क्यों ना हो, वो हजारों साल क्यों ना हो, क़यामत कितनी दूर क्यों ना हो, क़यामत को इस नजर से देखो कि वो करीब है। क्यों? इसे कि जैसे कहा जाता है, मक़ूला है मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, कि जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए तो यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई। जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई।
इसलिए कि मौत के साथ ही इंसान क़ियामत के मराहिल में दाखिल हो जाता है। मौत के साथ ही इंसान क़ियामत के मराहिल में दाखिल हो जाता है। आलमी इज्तिमाई क़ियामत वो अपने वक्त पे कायम होगी, लेकिन हर इंसान की क़ियामत उसकी मौत से कायम हो जाती है। और कोई इंसान नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी। इसीलिए कुरान हमें यह तस्वुर देता है, क़ियामत को दूर न समझो, क़ियामत बहुत करीब है, और जायजा ले लो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि इस आने वाली क़ियामत के लिए तुमने क्या तोशा तैयार कर रखा है। आमाल सालिहा का तोशा, नेकियों का तोशा, तुमने क्या नेकियां की हैं, तुमने क्या अमाले सालिहा किए हैं कबल इसके कि कल तुमसे सवाल हो। आज खुद तुम दुनिया में अपना जायजा ले लो। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है कि लोगों, कबल इसके कि हश्र के मैदान में तुम्हारा हिसाब लिया जाए, हश्र की अदालत में तुम्हारा हिसाब लिया जाए, दुनिया ही में तुम खुद अपना हिसाब ले लो। जो शख्स दुनिया में अपना हिसाब लेता है, अपना जायजा लेता है, अपनी नेकियों का, अपने गुनाहों का, अपनी जिंदगी का, अपने शब रोज का जो शख्स जायजा लेता है, उसी शख्स की आखिरत कामयाब होगी। जायजा ले लो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। एक सहाबी आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह मता अस्साअह, कहा अल्लाह के नबी बताइए क़ियामत कब आएगी, क़ियामत की घड़ी कब है, ये क़ियामत की घड़ी कब आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक ऐसा सवाल, एक ऐसी चीज के बारे में सवाल जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं, आपने एक ऐसा जवाब दिया जो साइल के हक में नफा बख्श हो। आपने कहा, ऐ क़ियामत के बारे में पूछने वाले, उमद आदत तलहा, पहले ये तो देख ले कि वो अगर आ गई तो तूने उसके लिए क्या तोशा तैयार कर रखा है, तूने उसके लिए क्या तोशा तैयार कर रखा है। पहले अपना जायजा तो ले ले, वो आएगी, अपने वक्त पे आएगी, उसे आने तो दे, लेकिन पहले ये तो देख ले कि तूने तोशा क्या तैयार कर रखा है। भाइयों, वमादा आदत चला, जो हमारे नबी ने फरमाया, ये सवाल हर उम्मती से है, मुझसे भी है, आपसे भी है, हम में से हर शख्स से भी है। हम में से हर शख्स ये देखे, हमने दुनिया खूब जमाई है, दुनिया की दौलत खूब इकट्ठा की है, हम में से बहुत सौ के पास कारून के खजाने मिल जाएंगे, हम में से बहुत सौ ने इतनी दुनिया जमाई है कि आने वाली कई नस्लें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन जायजा और हिसाब ये लेना है कि आने वाली उस आखिरत के लिए क्या किया है। अबदी आखिरत, दायमी आखिरत, हमेशा की आखिरत, उस अबदी और दायमी जिंदगी के लिए हमने क्या किया है। हमारा मामला तो यह है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, कि ऐ लोगों, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। लेकिन हमारा मामला यह है, कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, तुम दुनिया के मतवाले हो, तुम दुनिया के आशिक बने हुए हो, व तज़रून अल आखिरा, और तुम आखिरत को भूल बैठे हो, आखिरत को फरामोश कर बैठे हो। भाइयों याद रखना, आखिरत में पाने के लिए दुनिया में खोना पड़ेगा, आखिरत में पाने के लिए दुनिया में खोना पड़ेगा। आखिरत में वही पाएगा जो यहां खोने का हौसला रखता हो। आखिरत में हंसने के लिए दुनिया में रोना पड़ेगा, जो दुनिया में रोता हो आखिरत में उसी को हंसी नसीब होती हो। लिहाजा जन्नत हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, जन्नत बड़ी कुर्बानियां चाहती है, जन्नत के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, अपनी अरमानों की, अपनी आरज़ुओं की, और अपनी जो जिंदगी की हमने प्लानिंग और मंसूबाबंदी की होगी, आला से आला जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, आरामदेह जिंदगी गुजारने की जो प्लानिंग की होगी। हमें आखिरत अगर कमाना चाहते हैं, आखिरत के बंदे अगर अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, तो हमारे और आपके लिए जरूरी है हमारा तर्ज जिंदगी ये बताए कि हम आखिरत के लिए जी रहे हैं। दुनिया कमाओ, दुनिया करो, जरूर करो, शरीयत हरगिज नहीं रोकती, लेकिन दुनिया कमाने का मकसद भी आखिरत की कामयाबी हो। आखिरत के लिए हमें जीना चाहिए, वही हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर कामयाब क्यों ना हो जाए, दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर बामुराद क्यों ना हो जाए, दुनियावी एतबार से इंसान किस कदर कामरान क्यों ना हो जाए, हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कुरान ने कहा, फमा हकीकी कामयाबी क्या है, अल्लाह के नजदीक कामयाबी का तस्वर क्या है और कौन इंसान कामयाब कहलाएगा। कहा
फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, हकीकी मानों में कामयाब वही है और हकीकी कामयाबी यही है। इसलिए भाइयों, जन्नत के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, आखिरत की कामयाबी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, हम जो यहाँ बोएंगे वही वहां काटेंगे। जन्नत को पाने के लिए कुर्बानियां दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे होते। आपके गरीब सहाबा जो असहाबे सुफ़ा होते, जो कि गरीब सहाबा थे, नादार सहाबा थे, फकीर और कंगाल थे, बड़े भूखे रहते, प्यासे रहते, फक्र फाका बर्दाश्त किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ों में खड़े रहते। अचानक दौरान नमाज किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज आती, दौरान नमाज अचानक किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज आती। सलाम फेरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम फेरने के बाद पूछते कौन गिरे? बताया जाता है अल्लाह के नबी फलां साहब सुफ़ा में से फलां सहाबी भूख की शिद्दत की वजह से सर चकरा के गिर पड़े, प्यास की शिद्दत की वजह से गिर पड़े, फक्र फाके की शिद्दत की वजह से गिर पड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन नादार सहाबा से खिताब करके कहते, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि जन्नत की कैसी नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम मजीद तमन्ना करोगे कि तुम्हारा फक्र फाका मजीद बढ़ जाए, तुम्हारी भूख मजीद बढ़ जाए, तुम्हारी मशक्कतें और बढ़ जाएं। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या नेमतें तैयार कर रखी हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, आदतुल इबादी मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है कि जिसे किसी आंख ने देखा नहीं, जिन नेमतों के बारे में किसी कान ने सुना नहीं, और जिन नेमतों का हकीकी तस्वुर किसी के वहमो गुमान में गुजरा भी नहीं है। तो लिहाजा कितने बड़े घाटे में है वो शख्स, कितने बड़े खसारे में है वो शख्स, कितने बड़े नुकसान में है वो शख्स जो इस चंद रोजा जिंदगी के लिए, इस आर्जी दुनिया के लिए उस अबदी और दायमी और हमेशा की जिंदगी का घाटा कर ले और इस दुनिया की जाहिरी ज़ेबो ज़ीनत से धोखा खाकर उस जन्नत को जो है तबाह कर ले और उस जन्नत का घाटा कर ले। सही मानों में वही शख्स घाटे में है और सही मानों में वही शख्स खसारे में है। खसिर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, जिसकी दुनिया भी घाटे में हो और जिसकी आखिरत में भी घाटे में हो, सबसे बड़ा घाटा यही है और सबसे बड़ा खसारा यही है। भाइयों, ये सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतें हमें फिक्र आखिरत का पैगाम दे रही हैं, हमें फिक्र आखिरत का पैगाम दे रही है। जिंदगी की एक एक सांस, जिंदगी की एक एक सांस एहसास जिम्मेदारी से ले, जिंदगी का एक एक लम्हा कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदही के एहसास में गुजारे। मोमिन की जिंदगी फिक्र आखिरत के साए में गुजरा करती है। जो जिंदगी फिक्र आखिरत की रोशनी में गुजरा करती है कामयाब जिंदगी है। आखिरत को फरामोश करके गुजारी जाने वाली जिंदगी नाकाम जिंदगी है। इसीलिए हम देखते हैं कुरान आप जैसे ही खोलते हैं, कुरान जैसे ही खोले, कुरान के पहले सफ़े पे आपकी नजर पड़ती है वबिल आखिरति हुम युकिनून। कुरान के पहले सफ़े में सूरतुल बकरा के पहले पेज पर अल्लाह ताला अहले ईमान से खिताब कर अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए कहता है वबिल आखिरति हुम युकिनून। अहले ईमान वो हैं जो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन के साथ गुजारी जाने वाली जिंदगी कामयाब जिंदगी कहलाएगी। आखिरत फरामोशी और आखिरत को भुलाकर गुजारी जाने वाली जिंदगी नाकाम जिंदगी है, नामुराद जिंदगी है। और नामुराद है ऐसा शख्स, नाकाम है ऐसा शख्स जो आखिरत को भूल कर जीता हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम जिए तो आखिरत के लिए जिए, हमारे शब रोज आखिरत के लिए हो, हमारी जिंदगी की सारी तगोदो, हमारी सारी भाग दौड़ और हमारी सारी जिद्दोजहद आखिरत के लिए हो। अल्लाह करे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।